for the inaugural function of this one-week FDP on AI tools for effective implementation of outcome-based education, jointly organized from 7th to 11th April 2025 by Outcome-Based Education Cell and IQAC Cell of Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology in Nagpur, an autonomous institute accredited with NAC A+ grade and affiliated to Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University. May I now request our esteemed guests to kindly join us for the auspicious lighting of the lamp, signifying the beginning of a knowledge-filled week. Please, sir. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा I request the dignitaries to join for a photograph. सा मां पातु सरस्वती भगवती Thank you all. Now I request all the dignitaries to kindly grace the dais. Please, sir. On the dais, we have our Honorable Chief Guest, Dr. Atul Walegaonkar sir from AW Consulting Pune, Honorable Principal, Dr. Premanand Nagtode, Honorable Dean Academics and Convener of this FDP, Dr. Radharaman Shah, Honorable Dean IQAC and Co-Convener of this FDP, Professor Ritesh Banpurkar. Then we have Honorable Dean R&D, Dr. Anup Gade, Dean TNP, Nitin Chore sir, COE, Dr. Thakre sir, and Pratik Gutke sir. Off the dais, we have our directors, deans, registrars, COE, head of departments, faculty members of the institute, and all our dear participants. It is my pleasure to once again welcome you all for today's inaugural function of this one-week FDP. I now request everyone to please rise for a soulful and motivational prayer. Itni Shakti Hame Dena Data. On behalf of TGPCET Nagpur, I extend a warm welcome to our esteemed Chief Guest, Honorable Dr. Atul Walegaonkar sir. I request Dr. Snehal Abhyankar, Dean Student Council, to please welcome Dr. Walegaonkar sir. Thank you, ma'am. May I now present a brief introduction of our Honorable Chief Guest. Dr. Atul Walegaonkar sir is MD at AW Consulting Pune. Sir is BE Mechanical from NIT Raipur, ME Production and Industrial System Engineering from IIT Roorkee, and PhD. Sir is a highly experienced doctorate holder and IIT alumnus with over 35 years of expertise in research, digital transformation, and strategic business management within the education industry. He has a proven track record in both public and private sectors with significant achievements in developing and executing strategies for software related to student lifecycle management, online admissions,
web-based recruitments, library management, and e-governance. Sir is a former Chief General Manager at MKCL and former MD of Rajasthan Knowledge Corporation Limited, where he successfully transformed the company from a loss-making entity to a highly profitable one. Sir is a recognized PhD guide in mechanical engineering for Amravati University. He has guided 3 research scholars for doctoral research in automation, business process re-engineering, and supply chain management. He has over 40 plus research publications, 10 plus conferences, seminars, and workshops organized, 20 plus conferences attended, and over 300 plus talks have been delivered by Atul sir. It is now time to hear from our honorable chief guest. I request Dr. Atul Walagaonkar sir to please address the gathering and officially start today's session number 1. Oh, sorry. Oh, my mistake. Sorry. Now I would like to invite Dr. Premanand Nagtode sir, Honorable Principal of TGP-CET, to deliver the opening remark. Good afternoon. Today's chief guest, Dr. Atul Walagaonkar, AW consultant. Dr. Radharaman Shah, the Dean Academics, all other deans and HODs, participants for this FDP from outside as well as inside the institute. I am happy to share that this FDP is sponsored by NIEPA, New Delhi. Rupees 3 lakh grant has been given, but we cannot advertise it, so verbally I have to say this, that is their condition. But the topic is very good, because as we have done our NBAs for last 4 programs, what we have noticed that effective implementation of OB is must, and this will be beneficial for our institute as well as the participants who are coming from the outside. The noted expert in this field is here. He will deliberate, and I am hopeful his deliberations will be useful for this FDP. This is a 5-day FDP, and most of the participants are from outside. I hope 25-30 participants are there. And without taking much of your time, because sir has to, again, he has to leave this place. So I wish all the best for this, and thanks the organizer for organizing this event. Thank you very much. Thank you so much, sir. So now it's time to hear from our honorable chief guest, and I request Dr. Atul Walagaonkar sir to please address the gathering and officially start today's session number 1 topic, learning analytics and data-driven decision making.
I suppose I am audible. है ना? This will add one more already. Better we understand first our student then the subject. एक बार student कैसा पता लग जाए तो subject को mold किया जा सकता है. So in that context, it's very essential that we try to understand in how many sources, what type of data can be captured, and how they can be collated to create a very individualized, very personalized type of learning experience. If we deliver that type of experience, the outcome need not require to be measured; it can be seen. It is to that extent going to be a different ball game. Which way I am looking to that's it. You got clear? You got screen पे click. So this is what typically I need to look into today's interaction. I don't know how long it will continue. It depends on how we will interact. If we interact more time is going to be required, and if it's a monologue, then probably we can be over in 1.5 hours or so. So, objective of analytics is to do first. Outcome-based education is one of the objectives, not the only objective. Let us be very clear about it. Then, profile of data analytics, then question answer data analytics, then behavior detection through data analytics, impact of data analytics and AI. Let's see where we are today. Let us go into the wonderland of AI and data analytics. And this wonderland has been created by these: Google, Facebook, Instagram, Twitter or X, LinkedIn, Amazon and why you are getting so much of a personalized experience and services on all these platforms? Because of data. And what type of data do you think that they are capturing? Any one of you? Google ले लीजिए, Facebook, Instagram, Amazon, YouTube, कोई भी एक या LinkedIn, what type of data they are capturing? Yeah. Correct. Correct. Location for something, whatever you are searching for, right? Getting on the website. We are using it, so we must be aware of. क्या छोड़ के जाते हैं? These are digital exhaust और digital scrums. Red scrum जैसे होते हैं, और जहाँ जाना है वहाँ कुछ न कुछ छोड़ के जाना है. And they are in the business of exploiting this. What is getting और ये क्यों possible हो रहा है? Because of convergence of exponential technologies. So many things have converged. एक ही समय में there is this is behavioral surface. That is what I mean. Whatever we are doing, we are creating tertiary, secondary, fourth level, various types of data. हमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है. आप क्रेडिट कार्ड कहाँ स्वाइप करते हैं? पेट्रोल पंप के पहले, पेट्रोल पंप के बाद, मैकडी के पास कि कॉलेज के पास? That decides, आप कैसे हैं क्या? And one more thing is that almost each one of us have not more than 2 email IDs. One is official, another one is personal. और इन सब प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपनी पर्सनल आईडी यूज करते हैं. तो वो फिटबिट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे लिंक्डइन हो. सो इट मीन्स व्हाट? योर पिक्चर इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय ईच, एंड
and they are selling data to each other. And that is how they know better than you. Material infrastructure, इतना ज़्यादा infrastructure अभी खड़ा हो गया. पहले that was a limitation. Computing power is on the higher side. Algorithms are, पहले इंसान algorithm लिखता था. अभी data algorithm तैयार करना है. तो algorithm बनाने की process ही बहुत सरल है. आज रात कुछ algorithm था, वो ही Google, वो ही ChatGPT. आप पूछिए सवाल और आप पूछिए जवाब. सेम सवाल पूछने के बाद भी आपको जवाब अलग मिलेगी, क्योंकि आपकी पुरानी हिस्ट्री, आप क्या लाइक करते हैं, उसको कैसे कंज्यूम करते हैं, क्या वहाँ से कॉपी करते हैं, किसी देख लेते हैं और छोड़ देते हैं. सो दैट डिसाइड्स नेक्स्ट. एंड these various automated platforms, I asked you what they capture. Few answers we have. Now try to see. कुछ भी लिखते हैं, Zepto 10 मिनट में कैसे देता है, बताइए. जैसे अपने मोबाइल में वो प्रीडिटरमाइंड करने लगता है ना, आप लिखते हो तो मेनी लिखने के बाद अगला मेनी आ जाता है, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. वैसे ही आपने पहला वर्ड लिखा, अब ये बंदा क्या खरीदने वाला है, और वो सिग्नल जाके सप्लाई चेन में क्लियर ट्रिगर हो जाते हैं, और उसके बेसिस पे उनके एल्गोरिथम्स नेक्स्ट आइटम. So whether we are, any text, GPS coordinator, what your post, like, forwards, profile, retail transaction, कब खरीदा, क्या खरीदा, कहाँ खरीदा, communication pattern, frequency of phone charging. You have thought of anything like this कि आपको frequency of phone charging से भी लोग उसके ऊपर कुछ आपका analysis करते हैं, तो probably not. कोई भी आप डाउनलोड करते ही agree जब तक नहीं करते काम ही नहीं करता. और स्टार के नीचे कितनी बड़ी हिस्ट्री लिखी होती है, number of incoming messages, how many calls you return, how many contacts you got to contact list, how you fill online form, how many kilometers you travel each day, website you visit, book you read, time, location, content, the pattern of reading, music you listen. ये हमारे बारे में इतनी सारी चीजें कैप्चर हो रही हैं. और हम हमारे स्टूडेंट के बारे में क्या कैप्चर कर रहे हैं. हम तो खुद होकर प्रोएक्टिवली इतनी जानकारी दे रहे हैं, एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन बीइंग. तो व्हाट इज एसेंशियल इज दैट वी मस्ट नो मैक्सिमम अबाउट आवर स्टूडेंट्स वेरियस डेटा पॉइंट्स. बट प्रॉब्ली द ओनली कभी कोई एक्टिविटी अलग से करते हैं तो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं स्टूडेंट. बहुत अच्छी क्वालिटी का लिखा हुआ है तो बहुत खराब क्वालिटी का, मतलब 3 सिग्मा में ये इधर के और इधर के 2-3% ही हमें पता होते हैं, जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वी मस्ट नो. सो विद दिस पर्सपेक्टिव यू गेव यू प्ले टीवी शो, मूवी वॉच्ड, कम्युनिकेशन विद गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, चैटबॉट्स, ऑल दिस. अब ये देखिए, जब आप फिटबिट लगा के एक मूवी देख रहे हैं, फिटबिट लगा के एक मूवी देख रहे हैं, और अब ये सब चीजें आप ध्यान से देखिए. फिटबिट इज ऑन, यू आर वॉचिंग अ मूवी, बहुत थ्रिलर होगी, बॉडी टेम्परेचर बदलेगा, हार्ट टेम्परेचर बदलेगा, देखो मूवी. सो टू दैट एक्सटेंट वी आर एक्सपोजिंग अवरसेल्फ, and we are not trying to understand our LinkedIn. लेकिन अभी तो कोई भी जो आप ऑनलाइन कंपनी में अप्लाई करते हो तो वो सीवी तो बॉट्स ही स्कैन करते हैं. परफॉर्मेंस, जो कुछ भी हो रहा है वो खाली है. आप भी भूल जाएंगे आपने 3 महीने पहले क्या किया था, साल भर पहले क्या किया था, वहां पर सब कुछ रजिस्टर. Are we trying to capture something like this for our students? Recently, I read a book which was recommended by Hindustan Liver to their team. सभी के सभी को उन्होंने AI 2041 नाम की एक किताब, and there are 10 case studies of different countries, different situation.
एजुकेशन की केस स्टडी उसमें जो विजुलाइज की 2040 में, एवरी स्टूडेंट will have the moment he enters the first standard will have a AI assistant और उसका behavioral data से लेकर के biological data, health data सब कुछ उसमें है और टीचर को एक्सेस है उस AI का, वो कॉन्फ़िगर करता है उस बिहेवियर के हिसाब से वो क्या देखेगा, कैसे रिवार्ड एंड पनिशमेंट देना है, कैसे मोटिवेट करना है। और आपके कॉलेज में अभी जो एज दिख रही है 20 साल बाद भी आप टीचिंग प्रोफेशन में रहने वाले हैं और बीटा जनरेशन जो कि डिजिटली ही सब कुछ, मतलब अभी देखो जहाँ डिलीवरी होती है वो बच्चा माँ बाप को पहले नहीं देखता, पहले सामने वाली स्क्रीन पर टीवी देखता। टू दैट एक्सटेंट दे आर डिजिटली बॉर्न और वो जनरेशन आपके पास आने वाली है। सो यू विल हैव टू हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। वो आज ट्रिगर करेंगे तब होगा। ब्यूटी ऑफ दिस ऑल इज दैट पूरी जिंदगी का चिट्ठा उनके पास है। मेरी जिंदगी का नहीं, मेरे पिताजी का भी, मेरे बेटे का भी, सब। सो इंटरजेनरेशनल भी रिलेशनशिप कि इनकी औलाद होगी तो कैसे करेगी, फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पर भी आप देखो ना, नेटवर्क जो है वो फैमिली का है, फ्रेंड का है। हमारे ग्रुप भी वैसे ही बने होते हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज ऑल यू नो क्रिएटिंग पैटर्न्स। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे। हमारी रोज की लाइफ में ये सब चीजें हो रही हैं। अब यहाँ क्या क्या हो रहा है सर? लर्निंग एक्टिविटीज कुछ हद तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोर्स इंफॉर्मेशन अभी भी अगर हम हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, अभी आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, किसी बंदे को कुछ खोजना होगा तो कितनी लिंक नीचे जाके खोजना पड़ता है, बताओ 4, 5 एट टाइम्स। वो कहाँ है और वो क्या खोज रहा है इसके ऊपर, जबकि उसके ऊपर एक चैटबॉट डाल के सारी इंफॉर्मेशन, एक चैटबॉट वो रीड कर ले आपकी साइट की सारी फाइल और सिर्फ वो सवाल पूछे और वो लिंक पे ले जाए। हमारे से जैसे कितने की वेबसाइट पे ये प्रोविजन है, एक छोटा सा बी का प्रोजेक्ट ये काम कर सकता है। बट वी फॉर आवरसेल्फ वांट एवरीथिंग ऑन द क्लिक एंड फॉर अदर्स मेहनत करो। That's not. Just see. Today in this process, what I wish is that each aspect should become a project. Then only we will have that scenario what I visualize personally. You know, I had been in teaching for 15 years in IT. तो दोनों जगह की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मेरे में उचित अनुपात में समान। That is why you know we can feel it. एनालिटिक्स अभी हमारे दिमाग में जो है ना बस इतने लेवल का है, कोर्स लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, इंस्टीट्यूट लेवल, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये हम नैक के प्रोफाइल में डाल रहे हैं। Not utilizing it, not analyzing it, and not taking further step. We are putting it. Whereas, you know, दो aspect है, academic analytics and learning analytics. Nano level, कोई भी कोर्स में छोटी भी एक्टिविटी हो रही है अगर वो रिकॉर्ड करते हैं हम, तो that's going to be nano level. और इधर macro level, many training programs. So we move from granularity to macro level. This is the in general analytics pattern. इसमें और अंदर बहुत कुछ है। नैनो लेवल इंडिकेट्स एक एक्टिविटी में कोर्स में क्या हो रहा है, माइक्रो लेवल उस पूरे कोर्स में उस प्रोग्राम के, मेसो लेवल सारे कोर्सेज जो है किसी स्पेसिफिक एकेडमिक ईयर के लिए, और मैक्रो लेवल सारे प्रोग्राम एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जब हमारा फोकस जो है वो लर्निंग आउटकम के लिए रहेगा तो अलग लेवल के
डेटा कैप्चर करना होगा, और जब हम ऑपरेशनल या डिसीजन मेकिंग लेवल पे होंगे तो माइक्रो और मेसो लेवल। The purpose of today's analytics is, first mentoring. हम कभी mentoring कर सकते हैं जब किसी को समझ सकते। अभी भी हमारे टीचर गार्जियन स्कीम है, what name we have here? Mentor mentee. When I was in teaching, it was teacher guardian scheme. अभी mentor mentee. लेकिन वो कौन से साल में है और बहुत ही सतही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जब सतही इंफॉर्मेशन तो मेंटरिंग का तो चैलेंज। I'll tell you my last experience on interacting. I believe in interacting. So a month back there was a Citi Bank sponsored program where 30 launchpad 30 young entrepreneurs or would-be entrepreneurs, उनका 30 दिन का प्रोग्राम, and I was invited for 2-hour talk. And in that 2-hour talk, they started asking question. It went on for 18 hours. So जब सवाल पढ़ने लगते हैं ना, तब लर्निंग शुरू होती है। So that is why, how many of you have done prompt engineering course? How many of you have done course on prompt engineering? अगर किसी गुरु से आपको सीखना होगा तो आपको क्या आना जरूरी है? एक तो उसको ऑब्जर्व करना और दूसरा सवाल पूछना। और अभी सबसे बड़ा गुरु कौन है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो उससे सवाल पूछना आएगा। So these are some prerequisites. So prompt engineering course, for outcome-based education, because students are there. If we want to understand them, we have to be there, and we have to do that prompt engineering. So my request to you is that at least 4-5 prompt engineering courses. Why I am saying 4-5? Because everybody is having a different perspective. और आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा ये एक कोर्स से आपको पता नहीं होगा। I have done 8 to 10 prompt engineering courses. How many of you are devoting asking questions other than straightforward इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, on AI tools per day? How many hours, minutes? Half an hour daily? Prayer में जैसा morning prayer होता है वैसा? In industry we have morning prayer and evening prayer. ये मतलब ये इस वक्त होना ही चाहिए. And education has become industry. Let us be very clear about it. So morning prayer में AI के साथ 15 मिनट का daily interaction होना ही चाहिए. Because the way you ask, that is how that is going to train for yourself, and it will become personal assistant to you. Anyway. So we are using it for analysis, prediction, assessment, feedback, personalization, recommendation, decision making. ये सब चीजें हमारे रोज के लाइफ में हो रही है other than teaching. Other than teaching, we are being used for this or we are doing it. आपको YouTube पे जो वीडियो आते हैं, recommend ज़्यादा होते हैं. Netflix पे जो आप मूवी देखते हो, मूवी के पैटर्न पे recommend ज़्यादा होते हैं. We almost go into autopilot. ये कन्वेंशनल एनालिटिक्स का कन्वेंशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल, वर्ड से शुरू की, जैसे जरूरत पड़ी उस हिसाब से लर्निंग में कंटेंट बना, कंटेंट से फिर अब इंडिकेटर्स बने उसके कि मुझे क्या चाहिए, फिर वहाँ से डेटा पुल हुआ, डेटा रिपोजिटरी, आपके पास LMS होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, अलग अलग चीजें होंगी। Then आपके मैट्रिसेस उसके साथ होंगे, फिर then you are going to do data mining and then decision support. ये कन्वेंशनल मॉडल है। अब इसमें जहाँ पर भी सिर्फ डेटा लिखा हुआ है वहाँ पर AI डालें तो वो आज की तारीख का, और हम यहाँ पर भी नहीं है। Are we there? Let us be very honest here. Are we doing this
This is the cycle of our teaching learning experience. ओपन हाउस में ही जो कुछ होता है वो भी दैट इज पोस्टमार्टम, इट इज नॉट इन लाइन और रियल लाइफ। अभी एक और सवाल, इसकी बाद वाली स्लाइड मैंने जानबूझ के इंजीनियरिंग छोड़ के किसी और फील्ड के लिए, ताकि और वो जो स्लाइड्स हैं, वो जो रिसर्च पेपर है वो 2011 का और वी आर इन 2025। आपके आउटकम बेस्ड जो एजुकेशन की जो एक्सेल शीट है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कितने हैं अपने यहाँ है या एक्सेल में? We'll see how that if we make it visual, how different it will become. अब ये विजुअल एनालिटिक्स है। आपका जो करिकुलम का डेटा है वो क्या क्या है उसमें? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो कुछ है वो वर्कशीट्स है, प्रोग्राम कोर्स, वेब पेजेस है उसके, हायर एजुकेशन के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बोर्ड्स के पेजेस हैं, पेपर फॉर्मेट है, ये इतना डेटा है वो करिकुलम के साथ मैच करते हैं। दैट इज हाउ यू आर क्रिएटिंग न्यू करिकुलम डॉक्यूमेंट्स। देन विजुअल एनालिटिक्स के इंटरवेंशन से वी ट्रांसफॉर्म दैट इनटू टीचिंग मेथड्स, लर्निंग आउटकम एंड असेसमेंट मेथड, और फिर वो एक प्रोग्राम के लिए डिजाइन। अब ये अगला क्या, यहाँ पर कितने आउटकम है देखो, लर्निंग आउटकम। हमने एक प्रोग्राम में एक कोर्स में कितने लर्निंग आउटकम है आपके? मैक्सिमम 5। यहाँ कितने? देखो कितने? 16। प्लीज एक्सप्लेन मी एज एन व्हेन आई कैन यूज दिस एज अ प्रॉप। अब देखिए टीचिंग मेथड, उसमें से क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है वो 50% है और इतने उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आउटकम्स। सेमिनार 15% में कितने लर्निंग आउटकम्स सेटिस्फाई करें? लेक्चर्स 15% और वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि ये नॉन टच लर्निंग आउटकम्स है। नॉन टच लर्निंग आउटकम्स आपके इसमें है, मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूं लेकिन आप सीख रहे हैं। मैं अगर समय पे आता हूं, समय पे कोर्स कंप्लीट करता हूं, ईमानदारी से पेपर जाता हूं, तो मैं सिखा रहा हूं कि आपको कुछ सिलेबस में नहीं सिखाया, बट सामने ऑडियंस जो है वो टाइम मैनेजमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन अपने आप सीख रहा है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी, बट द वे आई express myself in interaction, those are non-taught learning outcomes है हमारे इसमें। कुछ ज्यादातर चीजें आपने अपने पिताजी जो सीखी है, उन्होंने बताई हुई चीजें सीखी कि उन्होंने ना बताई हुई चीजें सीखी। वेरी ऑनेस्ट, बताया तो नहीं करना है, तय होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हेन वी आर इनटू एडोलेसेंस, जब तक कि वो एक बच्चे का बाप नहीं बनता तब तक कि उसको पिताजी मतलब अलग ही टाइप के प्राणी नजर आते। उसके बाद देन ही रियलाइज कि नहीं, जितना खराब सोच रहे थे उतना नहीं, और आखिरी में लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छे थे, उस हिसाब से गड़बड़ है। सो दीज आर नॉन टॉट, सो दोज आर बिगर कंट्रीब्यूटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली कॉन्शियस अबाउट इट? ये मेडिकल साइंस में इतना इंटेंस है, क्योंकि मेडिकल साइंस में एथिक्स एक अलग चीज है, वो कैसे सिखाओगे? एथिक्स की डेफिनेशन बता दिए, सब हो गया, बट आई एम नॉन करप्ट एज लॉन्ग एज नो करप्शन अपॉर्चुनिटी। उसको कोई नॉन करप्ट नहीं बोलते। मैंने को मौका नहीं मिला, मुझे जिस दिन मौका मिला, सिग्नल तोड़ने का कोई नहीं था, तोड़ के गया, आई एम करप्ट। बट अगर कोई भी नहीं और मैं अकेला खड़ा हूं तो आई एम giving a different message to us. So those are non-taught. वैसे ही non-teaching oriented activities, ये सब non-teaching में आ जाते हैं।
It's an altogether different perspective of outcome. Written examination 100% questions. Skill, क्योंकि मेडिकल में स्किल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है तो 60% ये है. तो लर्निंग आउटकम 16. उसकी मेन कैटेगरीज जो है वो येलो वाली है. हमारे इसमें मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज कितनी हैं? क्योंकि जब तक हम ड्रिल डाउन नहीं करते ना समझ में नहीं आता. अरेबियन कंट्रीज जब ड्रिल डाउन किया तभी पता लगा ना धरती के अंदर में पेट्रोल और राइस हुए. We are not drilling it down as such. Something we have to think about. देखिए, अगर वहाँ पर है knowledge and skill 30%, 15% skill, 15% knowledge. Skill, knowledge, attitude put together, 1% skill, 1% knowledge. So this way probably जैसे सर कह रहे थे कि अभी outcome based education हम हमारे आउटकम कितने अच्छे से डिफाइन करते हैं और उसको अकम्प्लिश करते हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड अवर रेटिंग्स. अभी हमारे सारे आउटकम बेस्ड एजुकेशन के जो सेट किए गए हैं दे आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट कॉपी एंड पेस्ट और यू हैव यूज्ड इट थ्रू और यू हैव क्रिएटेड इट थ्रू एआई से करते. अल्टीमेट ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना आउटकम्स इतने सुंदर मिलेंगे. उसमें प्रॉम्प्ट क्या देना है कि सच इज द कोर्स और हर एक प्रैक्टिकल का आउटकम डिफाइन कीजिए. हर एक का रुब्रिक्स बना के देगा वो. बट वी आर नॉट डूइंग दैट. नहीं चाहे एक का हो गया. You know, I have abused my body. Now I have to respect my body. So it's a process of non-taught but learned. सबने कहा था चाय ज़्यादा मत पियो, लेकिन नहीं सुना. अब शरीर बताता है मत पियो तो नॉन टॉट. अब ये देखिए लर्निंग आउटकम लेक्चर से, सेमिनार से, केस बेस्ड लर्निंग, क्लिनिकल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, ग्रुप वर्क. इससे कैसा जब आप ये ऐसा पिक्चरली देख रहे थे देन नाउ यू आर फीलिंग कि व्हाट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन. एक्सेल से कनेक्शन ही नहीं होता. अभी भी आपको एक कहा जाए कि आप वर्ड फाइल बनाओ और एक्सेल फाइल बनाओ तो कहां पे कंफर्टेबल हो. और फिर जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें फिर आउटकम ये क्यों नहीं बनाए. बिकॉज आई एम गुड व्हेन आई एम कंफर्टेबल. इट्स एज सिंपल एज दैट. थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा लेकिन थोड़ा सा नहीं. सो बेनिफिट्स ऑफ, अब मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि विजुअल अगर हम एनालिटिक्स करते हैं तो क्या फायदे. यू हैव नाउ रियलाइज्ड द अर्ली वे रियलाइज्ड इट एंड प्रॉब्ली वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज दैट किसी पूरे के पूरे प्रोग्राम एक कोर्स को इस ढंग से जीने की कोशिश करना. क्योंकि हम लोगों को क्या है कि एक सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज नीड आर क्रिएशन. जस्ट डिसाइड कि ये प्रोग्राम में ये एक कोर्स इसी शिद्दत के साथ अपन करके देंगे, सारे टूल इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ करेंगे. और पूरे के पूरे कोर्स में भी नहीं, सिर्फ 3 प्रैक्टिकल में करेंगे. लेट अस डू इट दिस वे. वंस यू फील द एडवांटेज, नाउ इट इज लायबिलिटी ऑफ फीलिंग इट. यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, सो दैट इज व्हाई. क्योंकि मैं भी जब टीचर था अगर मुझे कहने के लिए कहा जाता था तो लगता था मैं पढ़ाने तो मुझे ये सब क्या काम पे लगा है. लेकिन जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते वो चीज कोई काम की नहीं. नंबर अच्छे आए तो टीचर ने अच्छा पढ़ाया, खराब आया तो स्टूडेंट ने हिट देखी खराब. जबकि हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि जो भी आए उसको खुदा बना के भेजो. ना खुदा है हमारे पास आएगा को खुदा बना के. तो दिस इज व्हाट आई डिड रियलाइज्ड. आई एम शेयरिंग. इट्स नॉट आई एम सेइंग यू आर डूइंग. आई डिड इट, आई रियलाइज्ड. और वो पश्चाताप के तहत मैं यहाँ आया हूँ. So examples of kind of services that it brings.
अगर हम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो एडमिशन, मैं आपको बताता हूँ कि यू नो अगर पेट से कोई चीज़ करने जाते हो ना तो जल्दी तकलीफ भी होती है और सीखता भी है ना। वी वर रनिंग टू MSc कोर्स आपने सुना, उसमें तो बहुत एडमिशन होती थी, उसके नेक्स्ट लेवल के कोर्सेज में एडमिशन बहुत कम होती थी। हम बहुत प्रमोट करने की कोशिश करते थे। तो व्हाट वी डिड इज दैट कि जो भी डेटा है ना, जितना भी डेटा फॉर्म में भरा हुआ है वो हमने एनालाइज करने की कोशिश की और हायर कोर्सेज में कौन एडमिशन ले रहे हैं। तो फॉर वी नेवर इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम इमेजिन उसमें से डेटा क्या आया कि जिनके पते में वाडा और पारा लिखा हुआ है ये एरिया के लोग ज्यादा नेक्स्ट लेवल के कोर्सेज में एडमिशन सर बताइए, तो हमारे कभी भी दिमाग में नहीं आया। अभी भी आज आप वो जो एडमिशन का डेटा है जितना अपने पास है, जितने कॉल्स आए हैं, उसके जवाब क्या मिले, उसका एनालिसिस अपने यहाँ सच में हुआ है। आपके पास होगा CRM होगा ना, वो बेचारा CRM इतना डेटा जनरेट कर रहा है लेकिन हमारे लिए सिर्फ वो बिल ही जनरेट कर रहा है। So we will see that how much can be. अब यहाँ से आप महसूस करेंगे कि कितना डेटा हमारे पास आ सकता है और आना चाहिए और कितना है। थोड़ा सा रिपीटेशन लगेगा कई जगह पर आपको, लेकिन कई बार क्या है बार बार बच्चा से तो नुकसान बन जाता है। उस फिलोसफी के तहत कुछ चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी होगी। अब देखिए एनोटेशन प्रोफाइल आपके मन में कभी कुछ आया है? आपके स्टूडेंट की एनोटेशन की भी कोई प्रोफाइल हो सकती है और उसमें क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं और कौन कौन कैप्चर कर सकता है। असेसमेंट प्रोफाइल कौन कौन जानते हैं, असाइनमेंट प्रोफाइल भी, फोरम प्रोफाइल वो कौन कौन से फोरम पे कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, ग्रेडिंग प्रोफाइल आपके पास थोड़ी है, मीडिया प्रोफाइल वो कौन सा मीडिया किस ढंग से कंज्यूम कर रहा है, रीडिंग प्रोफाइल, सेशन प्रोफाइल, टूल यूज प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल, फीडबैक प्रोफाइल। हमारे फीडबैक के फॉर्म भी NAAC में जो आना चाहिए वो लिखे फॉर्म। NAAC के लिए फॉर्म, अपने लिए दूसरा, कोई ने नहीं रोका, बट दैट इज एसेंशियल। एज ए टीचर आई शुड हैव माय इंडिपेंडेंट असेसमेंट। फर्क है NAAC के लिए जो लगता है वो वी आर इन द बिजनेस, वी हैव टू डू दैट, फाइन, बिकॉज आप नहीं करोगे कोई और कर रहा है तो फिर आप, लेकिन मुझे कुछ अलग करना ही है। एनोटेशन प्रोफाइल आप मोबाइल पे भी पढ़ते हो, आजकल तो स्टूडेंट को आप PDF भेज देते हो और प्रेजेंटेशन भेज देते हो, वही पढ़ते हैं। अब वहाँ पर कहाँ जाके वो क्या हाईलाइट कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है, कौन सी जगह पर कमेंट डाल रहा है, ये जब डेटा अगर हम कलेक्ट करेंगे तो वी क्रिएट अ पिक्चर अबाउट। किंडल आप कितने लोग किंडल पे पढ़ते हो? किंडल रीड्स यू मोर देन व्हाट यू रीड, क्योंकि आपने कौन से वर्ड डिक्शनरी में से देखे तो आपके अंग्रेजी या हिंदी या मराठी कौन से लेवल के उसको पता लगता है, कौन सा पोर्शन हाईलाइट करते हैं, ज्यादातर लोगों ने कौन सा पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है, सब कुछ दिखता है उसमें। हम जो PDF देते हैं अभी, व्हाट आई मीन टू से इज दैट इन डाउन द लाइन 3-4 ईयर, जैसे UPI जैसा हर एक बैंक से वो ट्रांजैक्शन लेके आ रहा है, एक लेयर ऊपर का बनाना है। स्टूडेंट को कहीं पे भी अगर हमारे इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वो कहीं पे भी जाए, लिंक्डइन पे जाए, मेरे इस रास्ते से जाए, बस वो एक लेयर अगर अपन अपने इंस्टीट्यूट में बनाते हैं तो ये सारा डेटा हम कैप्चर कर सकते हैं। उस किताब में मुझे शेयर पसंद आ रहा है, किसी को कुछ इमोशन पर, उससे उसके ट्रेड्स पता रहते हैं, देन वी आर इन अ पोजीशन टू मॉनिटर। जिसकी शादी तय होती है वो जो शेयर पढ़ता है और लिखता है इधर उधर से, और 40-50 साल वाला होता है वो फर्क है। So what you read, how you read, what you highlight, it is known as annotation. अभी भी आप अपनी किताब में दिखेंगे, मतलब पिताजी को कोई किताब मिल गई तो देखिए उन्होंने किस ढंग से मोड़ के रखा है पेज, कहाँ मार्क करके रखा, कहाँ पेंसिल से लिखा है, कहाँ क्या लिखा हुआ है। That now you are mature, you can understand क्या सोच रहे हो।
हमारे लर्नर की ये प्रोफाइल हमारे पास है क्या? These profiles are going to be there with us. What we have to see is that इसमें से एक हर बार कोई एक नया एट्रीब्यूट हमारे पास रिकॉर्ड करना शुरू होता है। अब एक इंस्ट्रक्टर को क्या लगेगा, एक टीचर को अगर वो एनोटेशन प्रोफाइल लिखते हैं तो कौन सा स्टूडेंट कितने एनोटेशन कहाँ हाईलाइट कर रहा है, क्या अंडरलाइन कर रहा है, कहाँ पर रिमार्क डाल रहा है, कौन सा पोर्शन बार बार पढ़ रहा है, कौन सा पोर्शन स्किप कर रहा है। ऑल दिस विल टेल यू एंड गिव यू अ पिक्चर अबाउट स्टूडेंट कि वो पढ़ता कैसे है, एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है आपके दिए गए घंटे। और वो जो डेटा जनरेट होगा कहाँ पर ज़्यादा रुकता है, कहाँ पर नहीं रुकता, कहाँ स्किप करता है, स्किप कर रहा है मतलब उसको या तो समझ में आ गया या इंटरेस्ट नहीं, ज़्यादा रुक रहा है तो समझने में दिक्कत हो। अभी वन ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटी उन्होंने ऊपर एक लेयर डाला हुआ है और उसी के थ्रू चैट जीपीटी, क्लॉड, प्रो सब के सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूट ने खुद लिए हुए और आप वहाँ से पास हो। तो पहला असेसमेंट आप जो कुछ लिख रहे हो वो पहले ये एआई टूल्स करते हैं, उनको क्या लग रहा है वो बताते हैं, बाद में टीचर की रिपोजिटरी में से उसने कितना देखा है, क्या देखा है, सब पूरा। So what is essential for us is that एक अपने यहाँ तो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एक छोटा सा लेयर, these are all small project, let us do that and एक ही डेटा कैप्चर करने का बस एक बार में एक ही बस जैसे करें तो आपके कितने स्टूडेंट्स हैं अगर कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में मिला के 500 प्लस 5 स्टूडेंट बैच, इट मींस 100 एट्रीब्यूट्स के लिए 100 प्रोजेक्ट्स बनाने। That's it. And then the moment you present that to some body NAC, they will be mesmerized. कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था. And that is going to give you the different platform. Student को पहले कॉन्सेप्ट अपन भी बार-बार आप जब पढ़ाई करते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन वाला मार्क करके रखते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये बाद में समझ में आया, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो इससे हर एक की किताब, कोई किताब फेसबुक मार्क की हुई है सबको, लेकिन उनके मार्किंग सब स्टूडेंट के अलग अलग है, उसका परसेप्शन इंपॉर्टेंट का, जनरल का, डिफरेंट का अलग है। सो दिस वे एक रिसर्चर को क्या चाहिए एनोटेशन से? अभी अपने यहाँ पीएचडी भी चल रहा होगा, पीएचडी रिसर्च सेंटर है, एक रिसर्च स्कॉलर जैसे अभी 100 प्रोजेक्ट हैं अपने, वो 100 प्रोजेक्ट के ऊपर में 10 एमटेक के प्रोजेक्ट और 10 एमटेक के प्रोजेक्ट के ऊपर में 2 पीएचडी। देन यू विल बी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इफ यू नो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, इफ यू हैव कम टू कि मेजर कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, डेफिनेशन कैसे हैं, तो शायद आपको निराशा हो सकती है, बट आई वांटेड टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। असेसमेंट प्रोफाइल, अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन करते हैं, आपका खुद का छोटा सा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर है ना, ग्रेट। अब सिर्फ उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दीजिए, कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हैं। एक बंदा खूब कॉन्फिडेंस से लगातार सब गलत जवाब दे रहा है और एक बंदा सारे सही जवाब दे रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं। अब यहाँ पर आप मेंटर करा, अरे राजा काय एवढा कॉन्फिडेंस काही कामच आहे, सगळं चुकत आहे और तुझे सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस क्यों कम है? सो देयर यू बिकम अ मेंटर। अभी ये एस्पेक्ट आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में है, सिर्फ ये एक फीचर डाल दीजिए, उसका एक कैरेक्टर अपने को मिल जाएगा, वो कितने स्पीड से वो सॉल्व करता है हर एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, वो एक रिकॉर्ड में डाल दीजिए, उससे पता लगेगा। ज़्यादा स्पीड से गलतियाँ करता है कि ज़्यादा स्पीड से करेक्ट बना रहा है, ज़्यादा कम स्पीड से करेक्ट बना रहा है, कम स्पीड से गलतियाँ कर रहा है, बट ये तो डाल सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, बिकॉज यू नो आई विजिटेड योर control of exam office there, you have your own on-screen evaluation system. तो अभी उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। आपके क्वेश्चन पेपर में आप
वो लर्निंग ऑब्जेक्ट कौन सा सर्व कर रहा है लिखा हुआ है क्वेश्चन में पूछा कोर्स आउटकम और लर्निंग ऑब्जेक्ट अभी मैंने दिखाया था ना। कोर्स जो है अलजेब्रिक समेशन ऑफ, तो अलजेब्रिक समेशन ही हुआ तो वो तो अंदाज है, गलत फीलिंग हो गया। लेकिन अब आपके पास ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन खुद का है, सिर्फ आप वो कौन सा क्वेश्चन, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसका लर्निंग ऑब्जेक्ट कौन सा है और कोर्स आउटकम कौन सा है, ये डाल दीजिए। फिर वो जो डेटा जनरेट होगा उससे आपको ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मिलेगा, जो कि अदरवाइज ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का पर्पस नहीं रह जाता। सिर्फ ऐसे के बजाय ऐसे कर रहे हैं, मतलब स्पॉन्टेनिटी अवॉइड, nothing more than that. But that is not the purpose. So पहला क्वेश्चन जवाब देने के बाद दूसरा क्वेश्चन भी सही जवाब देता है तभी उसको समझ में आए। इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में डाले हैं क्या? और अगर तुमने दूसरा भी क्वेश्चन सही दिया तभी पहले का नंबर मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। अदरवाइज इट इज टू फार बिकॉज़ दोस आर टू रिलेटेड कांसेप्ट। ऐसा प्रोविजन किया है कि अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऐसे एक दो क्वेश्चन डाल के ये सॉफ्टवेयर में प्रोविजन, देन यू आर मेजरिंग इट। आदमी बैठ के मेजर करेगा तो कितना मेजर करेगा, डायमेंशन सी बात मेजर करेगा, इधर उधर में क्या देखेगा, कुछ नहीं देख सकता। डेटा वहां उतर सकता है और ये सिर्फ हर एग्जामिनेशन इवेंट में आपके सॉफ्टवेयर में एक एडिशनल फीचर डालने वाले, बस इतना ही कसम खाओ, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं। इन 3 years टाइम ये जो जितना मेजर करना है वो मेजर किया हुआ मिलेगा एंड वी विल बी सिटिंग ऑन दैट टू टेक करेक्टिव एक्शंस। Because you know I was in that business also, conducting online examination, providing online examination solutions. So we added all these things. Similarly, exam form अभी आप जनरेट करते हैं कि नहीं करते? हालांकि जरूरत नहीं, लेकिन करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। एग्जाम फॉर्म जनरेट करते वक्त फीडबैक देते हैं। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया बिकॉज यू नो आई वाज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ERP टू ओपन यूनिवर्सिटीज आल्सो। तो वो तो मिलते ही नहीं किसी से, समझे कैसे उनको? तो व्हाट वी डिड, उसमें हमने एग्जाम फॉर्म के साथ साथ फीस भरने के बाद एग्जाम फॉर्म भरो, वो भरा हुआ रहता था क्योंकि जिसमें एडमिशन है उसी का फॉर्म भरना है, या जिसमें फेल हुआ उसी का, वो तो भरा हुआ रहता है। फी भरने के पहले क्वेश्चंस, कौन सी यूनिट अच्छे से समझ में आई, कौन सी नहीं आई, किसमें दिक्कत हो रही, अब वो सब लिखवा लिया उससे। रिजल्ट के बाद में उससे ना कि इसने जिस यूनिट में समझ में आया था रिजल्ट सच में समझ में आया बता रहा है कि नहीं। So if you add one question in your exam form, you will understand your student. हॉल टिकट के समय में भी तैयारी कैसी हुई है, बहुत अच्छी, कौन कौन सी यूनिट की अच्छी हुई है ये, क्योंकि उस समय तक तैयारी हॉल टिकट तक आ जाए। हॉल टिकट की वैसे जरूरत है कि अभी आपको वो शक्ल और वो और टीचर सब एक दूसरे को बनाते हैं, बट वी आर गिविंग हॉल टिकट ना। हॉल टिकट के साथ एक क्वेश्चन डालना शुरू करो, देयर यू आर गोइंग टू क्रिएट इट, आपका वो भी सॉफ्टवेयर हो गई है। So all outcomes are automatically visualized. इसका मैं कहता कि इतना भी हर स्लाइड जो है that is one project for you and what your software और humble beginning, one feature at a time. That's जबरदस्त है। हैकाथॉन वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, 24 घंटे में ना सोते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन अपने को लगता है कि अपना इंटेक उस पॉइंट तक लगता रहता है कि अपना इंटेक अच्छा नहीं है। हैकाथॉन जीत के आते हैं ड्राइव। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि हमारे हैकाथॉन भी जो है छोटे छोटे मिनी हैकाथॉन्स, ये फीचर डेवलप करना है 24 घंटे में, अवार्ड और एक असाइनमेंट के नंबर उसी चीज में मिलेंगे। असेसमेंट कैसे करना है, हैकाथॉन से नंबर देने हैं, माइक्रो हैकाथॉन से देने हैं, मिनी एंटरप्रेन्योरशिप से कहाँ से नंबर देने हैं, दैट इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू मेजर, गिव मार्क्स फॉर दैट। सो ऐसा एक एडिशनल फीचर डालिए, दैट इज असेसमेंट प्रोफाइल
बाकी सारी चीजें असेसमेंट में कितने देर में, हाँ वो एक और आपका ऑनलाइन कितने देर में वो कंप्लीट करता है और कितना करता है, तो ये सब आई शेयर ऑल दीस थिंग्स। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप एक एक प्रोफाइल खुद को असाइन करो और उसके ऊपर ही काम करो। देन द पर्पस ऑफ आवर टुडेज मीटिंग विल बी सर्व्ड। और इसका एक कैलिपर प्रोफाइल नाम का एक सॉफ्टवेयर है, यू कैन यू नो कैलिपर प्रोफाइल अगर आप गूगल करेंगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से ही मैंने सब किया। सिर्फ यह है कि मुझे आपने कहा कि आओ, और शाह साहब ने कहा कि इसी मुद्दे पे बात करना है, लिटरली उन्होंने कहा था कि यही मुद्दे पे बात करना है। तो देन आई वाज फोर्स्ड, उनका हर 2-3 दिन बाद फोन आता था, वो मैसेज आता था प्रेजेंटेशन अभी तो पक रहा है, अभी तो पक रहा है। तो कल रात में मैंने कहा ज़्यादा तकलीफ मिल के रात में डिस्पैच कर दिया, सुबह उठ के एयरपोर्ट तक वापस आते तक उसमें जितने बार पढ़ो तो उतने बार लगता है कि ये तो या तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है या मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा सब कंटिन्यूस चलती है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट वो जो 2 पेपर हैं, एक वो पेपर की भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा जिसमें कि वो आउटकम बेस्ड का जो विजुअल दिखाया है, और ये कैलिपर की प्रोफाइल जब आप इसमें डूबोगे, then my humble request is that एक प्रोफाइल उसमें का एक एट्रीब्यूट और हमारे सॉफ्टवेयर में आना चाहिए बस। That is the only thing we have to do per semester. In 3 semesters, all profiles will be there captured by. असाइनमेंट वो कब शुरू करता है, देते ही पहले दिन शुरू करता है कि तीसरे दिन शुरू करता है? ऑनलाइन दे रहे हैं असाइनमेंट कि ऑफलाइन दे रहे थे? तो कब शुरू करता है आपको पता लग जाता है, पढ़ते ही शुरू कर रहे हैं, पढ़ते ही सबमिट कर रहे हैं। दैट गिव्स यू नो, आप पहले दिन पहले शो पिक्चर अगर कोई किसी का देख रहा है तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इज स्पेशल यू नो। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग एमटेक, तो हमारे 1800 रुपये स्कॉलरशिप पर मंथ की और 5 सब्जेक्ट थे, और स्कॉलरशिप हर एक टीचर की 75% अटेंडेंस होती थी, तब उस प्रपोर्शन में रिलीज होता था। एक सब्जेक्ट में 70% हो गए टीचर के बाद ऐसा थोड़ा सा गरीब में बेचारे ऐसा वैसा, और मेरा फलाना ठिकाना तबियत खराब हो गई, 20 की अटेंडेंस कम। तो उन्होंने कहा था एक ही सवाल पूछा, व्हाई यू आर नॉट काइंड इनफ टू अटेंड माय क्लासेस? And that was so deep for me. I really prepared it. And उस साल उस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, I got 146 आउट ऑफ 100। अभी तक का वो रिकॉर्ड कंप्यूटर है। तो ऐसा भी आपको ये डेटा उन्होंने कैप्चर किया, और उन्होंने एज ए मेंटर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, व्हाई यू आर नॉट काइंड इनफ टू अटेंड माय क्लासेस। और हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारा स्टूडेंट कोई नहीं कर रहा है तो जस्ट रिकॉर्ड इट। अगर कोई और तरीके से उन्होंने कहा हुआ था तो 75 होते हम लोग वापस आ जाते। 1-2 टीचर ऐसे थे कि जो बहुत ही थे ना, रास्ते में जाते जाते कैलकुलेशन करते थे, अरे 76 हो गई, चल वापस नहीं जाएंगे। दिस इज स्कॉलरशिप। सो हाउ मच टाइम, व्हेन यू स्टार्ट, व्हेन यू कंप्लीट, व्हेन यू सबमिट, व्हेन यू एक्टिवेट, व्हेन यू डीएक्टिवेट, व्हेन यू रिव्यू, इसमें से कोई एक फीचर आपके असाइनमेंट वाले सॉफ्टवेयर में अभी आपने with me? It's not hurting? Sure? It is hurting. डर भी लग रही है कि मुझे ही लगी? अरे यार 29.5 पे सेट किया। हाँ। मैं बोलूँ कि मेरे ही कोई इतना मतलब पसीने आपको बोलते वक्त हंसी कोई इतनी छूट रहा है। हाँ छुड़वा खड़े होते अरे क्या स्पेशली असं आपण ओळखतो आपल्या इतनी बारीक चीज है। मैंने भी इतने बार मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ऐसे ही पढ़ाने में पसीना आ रहा है, एक बार ऊपर देख रहा था anyway, fine. So assignment profile में
assign the material, when it is, all these things are. मेरा मकसद यही है कि आप हर एक प्रोफाइल में कोई एक एट्रीब्यूट्स कैच करो। स्टूडेंट को तो किसको कब सबमिट करना है इसके अलावा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें, लेकिन बाकी रिसर्चर, इंस्ट्रक्टर, कंटेंट डिजाइनर, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें मायने है। कभी हमने अभी हमारे पास अगर एक समय में आ जाते तो हम समझते हैं कि ये सब कॉपी करके एक साथ आए। हिवाळ्यात नंतर झालं नाही पाहिजे प्रोग्राम, हां? नाही, हिवाळ्याची सेटिंग ठीक होती. फीडबॅक प्रोफाइल आता रेटिंग, कमेंट, स्केल, मल्टीपल सिलेक्ट. So, as far as the feedback is concerned, I suggest you insert 1 line, 12 liner feedback, exam form, admission form, hall ticket, even result के समय में भी result download से पहले ये चीज़ होता था, तभी download. So this is how you can capture, and that is your in-house software. You can do it, and you must. कौन सा क्वेश्चन लोग इंगेज हो रहे हैं, कौन सा से टिक करके फटाफट आगे बढ़ रहा है, that gives a lot of feedback about the feedback itself. फोरम, अपने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज फोरम है ऑनलाइन, उसके थ्रेड्स का कोई एनालिसिस करता है? हाँ, फोरम नहीं. ब्लॉग्स एंड फोरम्स करायला विषय. मग तिथे कसे, अच्छा मैं लास्ट टाइम भी पूछा था जो लोग थे उनसे कि हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज, 2 courses पर मंथ, ऐसा मेरा सवाल था लास्ट टाइम, एंड द आंसर वाज 2 courses पर ईयर. फाइन, दैट वाज नॉट द वरी पार्ट ऑफ इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड वाज दैट हाउ मेनी ऑफ यू आस्क क्वेश्चंस एंड आर पार्ट ऑफ द फोरम ऑफ दैट कोर्स. उसका जवाब बहुत पॉजिटिव नहीं आया. So the moment we create a forum, स्टूडेंट एक दूसरे से क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, कौन से जवाब को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बाकी जगह पर हो रही है, हमारे यहाँ पर होनी चाहिए. तो कोई एक सब्जेक्ट का फोरम, अभी AI का फोरम बनाओ और उसमें अलग अलग टॉपिक्स डालते जाओ, उस पर डिस्कशन करने दो, फोरम के थ्रेड्स आइडेंटिफाई करो. ये पॉसिबल. So that is how you can demonstrate that you are very focused on output, not on, NAAC is byproduct. Here now the NAAC is product. This will make the entire, जिसको कहते हैं, मतलब वो काम मैंने किया 15 साल, यूनिवर्सिटी जो सिर पे खड़ी थी उसको पैरों पे खड़ा कर. कब जमाने में एडमिशन और एग्जामिनेशन की फी थोड़ी थोड़ी हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा लगती थी, मतलब 3 रुपए 5 रुपए एडमिशन फी थी और 2 रुपए एग्जामिनेशन फी थी. दैट वाज अ बिग सम, लोग नहीं दे सकते थे, इसलिए अभी एडमिशन फीस दो और बाद में एग्जामिनेशन. आज एक एडमिशन फी कितनी है? 1 लाख. एग्जामिनेशन फी कितनी है? 1,000. वो 1,000 जमाने के लिए मेहनत उसको 1,000 की करवाते हो, उसके बजाय 1,01,000 फी ली और एग्जाम फी मिल गई बोले तो क्या दिक्कत है? एग्जाम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही एग्जाम फॉर्म है जो एडमिशन में लिया. सो दीज आर स्मॉल चेंजेस. तब वो सिर के बल खड़ी के बजाय पैर के बल खड़ी. हॉल टिकट की कोई जरूरत नहीं. आइडेंटिटी कार्ड छपेगा, उसके पीछे में उसने कौन से सब्जेक्ट लिए छाप के दे और वही लेके आना. काम खाता थोड़ी करते हैं. अल्टीमेटली हर साल आई कार्ड देते हैं ना, मग काय प्रॉब्लेम काय? आपण प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड करत जातो. अरे हॉल तिकीट द्यायचे आहे, मग वाटायचे आहे, मग सही कर, दे, रेकॉर्ड दिलंच नाही त्याला फोन कर, कोई मतलब नाही. So you are going to create forum for one subject.
per program one subject only, and see how they interact, how teacher respond. लेकिन उसमें important बात यही है, अभी आप देखिएगा फेसबुक के पेजेस पे जो बिजनेस पेजेस होते हैं या यूट्यूब के वीडियोस, वहाँ पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं 24 घंटे के अंदर उसके जवाब आते हैं। तो हमारे वो फोरम पे भी अगर जवाब नहीं आए, इंटरेक्टिविटी नहीं रही, तो फिर डाय स्टेल हो जाए। तो दैट इज टू बी वेरी, और उसका स्टूडेंट इंचार्ज बना, अरे कौन से सवाल नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो सिर्फ शाम के आके आपको एक इवनिंग प्रेयर, दैट इज व्हाट यू। I was leading a team of 100 software developers and about 30 business development staff. लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैं ऑफिस में हूँ और उनके टेबल पे नहीं गया। अरे टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, बट आई यूज एंड यू कैन फाइंड टाइम। कुछ नहीं, यहाँ से वहाँ तक पैदल ही तो चलना था, और वो स्क्रीन पे जो दिखता है, उसके चेहरे पर जो दिखता है, उससे आपको आपके सॉफ्टवेयर की और उसकी दोनों हिस्से पता लगता है। So, if you create forum, then ensure that जो भी चीज कर रहे हो वो शिद्दत से होनी चाहिए, complete होनी चाहिए। अब जिस सब्जेक्ट में फोरम में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, उसका कोर्स आउटकम, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो दैट इज आउटकम मेजरमेंट। आपके पास किस वजह से रिजल्ट अच्छा है ये पता ही नहीं है आपको, सच में पता है क्या? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता लगा, बट ये सब बता सकता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये फोरम का हो गया। ग्रेडिंग में कितने अटेम्प्ट ले रहा है वो, कितने डिजिटल रिसोर्सेज देख रहा है, ऑल दीज थिंग्स यू नो यू क्रिएट योर प्रोफाइल। इतने प्रकार से आपने देखी थी क्या ग्रेडिंग की प्रोफाइल स्टूडेंट्स की? आजकल किताब कितनी लोग पढ़ते हैं आपके स्टूडेंट्स? बहुत कम। लाइब्रेरी में अभी भी आपको वो टेबल दिखी, वो पढ़ता ही नहीं है किताब से, इसलिए टेबल खाली है। अगर वहां पर स्क्रीन होती और हेडफोन होता तो ज्यादा प्राणी मिलते हो, और आपकी फायरवॉल में से वो कहाँ जा रहा है, कितने देर जा रहा है, ये डेटा मिलने वाला है। उसकी ये वीडियो प्रोफाइल कितने आसानी से जनरेट हो सकती है। फॉर्चुनेटली या एक्सीडेंटली या अनफॉर्चुनेटली आप मुझे वहां ले गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट वो जमाना ही नहीं रहा जिस जमाने की लाइब्रेरी हमने रखी, इसलिए वहां पर 2-3 लोग ही थे, और उसमें से 4-5 थे, मैंने देखा उसमें से 3 बच्चियां तो मोबाइल से बैठ के लिख रही थी, तो दे वर नॉट रेफरिंग बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी, है ना? ये हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, फिर भी हम उसको बड़ा डिवाइस देखिए कैसे ना ड्रॉइंग करते हैं, मोटी स्क्रीन है मानत नहीं, और इंडस्ट्री में कैसे ना ड्रॉइंग करते हैं, मोटी स्क्रीन भी होते हैं। हर एक के लैपटॉप के साथ साथ इतनी बड़ी स्क्रीन दे देगी, बाबा तू जितने दिन ठीक रहेगा हमारे लिए ठीक है। So that is, you know, boy, don't take it otherwise, but these are the small inputs that is going to, you know, तब आप बता सकते हो कि सर ये हमारा है ना, मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, हमारे बच्चे कितने लोग वीडियो देखते हैं, कितने टेक टॉक देखते हैं, कितने पॉडकास्ट सुनते हैं। आई कैन टेल यू, स्टूडेंट आईडी के साथ एंटर करना है, बस उसकी आईपी भी ट्रैक होने वाली है, आपके घर में देख रहा है वो, और आपके फायरवॉल से वो 5 ही साइट रखो ना, और चैट जीपीटी और वो सब, तो आपको पता तो लगेगा कि वो कर क्या रहा है। अभी पता ही नहीं हमको, सच में नहीं पता, बट दिस इज पॉसिबल थ्रू फायर। तो ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आप या तो बुलाओगे नहीं, और बुलाओगे तो मैं सब पूछूंगा। ना आउटकम बेस्ड उसी को बोलते हैं ना, मेरे आने का आउटकम क्या, ईडीए कैन नॉट बी एन आउटकम।
So this is what I mean to say with media profile. अभी आप आगे आप अगर आपको अच्छा लगे तो ये टेक्स्ट पढ़ लीजिए. My purpose is to figure out कि कौन सा वीडियो कितने बार देख रहा है, कहाँ पॉज कर रहा है, वो सब वहाँ दिखता है, वो सब उनको कैप्चर करने की बात है. एंड देन यू अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट मच बेटर. एंड कुछ नहीं, हैकाथॉन जिंदाबाद. हर चीज का हैकाथॉन, हर 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. अब मुझे पता लगता है कि कौन YouTube पे ज़्यादा जा रहा है, कौन ऑनलाइन कोर्सेज देख रहा है, कौन टिकटॉक देखता है, कौन पॉडकास्ट देखता है. उससे मतलब वो ऑडियो ज़्यादा पसंद करता है, कोई वीडियो से सीख रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, तो उसका इंक्लिनेशन और टेस्ट पता लग जाए. देन आई कैन प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ इनपुट. अभी आप चैट GPT इस्तेमाल करते हुए अपने कोर्स करिकुलम को रिवाइज करके देखा क्या? उसमें एक प्रॉम्प्ट डालना चाहिए कि ये इंडस्ट्री के रिलेवेंट है क्या, नहीं है तो इसको रिलेवेंट बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, और हर एक यूनिट को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाने के लिए उसमें क्या क्या कैसे सिखाना होगा, उसके रिलेटेड नेसेसरी ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट कंटेंट सजेस्ट करो, और हर एक के लिए एक्टिविटी सजेस्ट करो, ताकि ये आउटकम अचीव हो सके. ऐसा किया है क्या आपने? तो ऑटोनॉमी का फायदा क्या? RTM मेन्यू से यहाँ हो गया, वही जो वहाँ हो रहा था वो यहाँ हो गया. अभी मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, हर कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ा रहा है, उसका करिकुलम लेके, प्रॉम्प्ट देके उसमें चेंजेस नेक्स्ट रिवीजन ऐसा करके देखिए, और उस पर यकीन मत कीजिए, उस सब्जेक्ट के किसी एक्सपर्ट इंडस्ट्री के शेयर कीजिए कि ये हम लोग सोच रहे हैं, ये चेंजेस इसमें हम विजुलाइज कर रहे हैं, आर दे एंड यू सी दैट 99% उनके तरफ से कोई भी आपका पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ना यहाँ आता है. लेकिन इस ढंग से वर्चुअली आप, क्योंकि वो सब कुछ वहाँ क्लाउड पे पढ़ा हुआ है, यू हैव टू कोलेट इट, ट्राई टू आस्क क्वेश्चन. ऑल एक्सपर्ट्स आर सिटिंग ऑन द क्लाउड. बारिश नहीं हो रही बोलने का कोई मतलब नहीं, बादल हैं, नीचे वातावरण तैयार करो, बारिश हो. रीडिंग प्रोफाइल. तो जब आपकी लाइब्रेरी में लोग ऑनलाइन पढ़ने लगेंगे तो ये लगाया जा सकता है आसानी से, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं. एंड यू कैन हैव लॉग ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू कैन डेमोन्स्ट्रेट कि दिस इज द रीडिंग प्रोफाइल ऑफ आवर स्टूडेंट्स, टॉप 10 स्टूडेंट्स. सबके बताने की जरूरत नहीं, दिस इज रीडिंग प्रोफाइल ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स, या जिनकी रीडिंग प्रोफाइल ऐसी, उनका रिजल्ट ऐसा, व्हाटएवर इट बी, खराब है, अच्छा है, देन यू विल अंडरस्टैंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग रीडिंग प्रोफाइल. Perfect. In couple of minutes. Sure. रिसोर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोफाइल. My again humble request is that you see each profile one attribute and go for hackathon. क्या क्या सर्च करते हैं, इसकी प्रोफाइल है कि अपने पास, अगर आपके सिस्टम में से सर्च कर रहे हो, वाईफाई सब जगह दिखा था, मतलब आपके सिस्टम को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, फायरवॉल से चेक करो कि वो क्या देख रहा है. That's it. कोई सेशन कितने देर चलता है, वो प्रोफाइल. सर्वे के बारे में, नंबर ऑफ सर्विस, कौन से क्वेश्चन का जवाब जल्दी दे रहा है, नहीं दे रहा है, स्किप कर रहा है, ऑल दोस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट सर्वे. कौन कौन से टूल इस्तेमाल कर रहे हैं आपसे लॉन्च किए हुए, वो भी. अभी आप कोई वर्चुअल टूल्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं दे रहे? If you do that, then you can have this profile also created for you. कितना समय ले रहा है, कौन से क्वेश्चन चूज कर रहा है, कौन से स्किप कर रहा है,
ये कंट्रोल ऑफ एग्जाम ग्रुप्स कौन थे? कंट्रोल ऑफ एग्जाम ही तो थे ना. So in our control of exam, such data has to be generated. उसका behavior is पता लग सकता है. What is the impact of all this is that improved outcome, customized program, reduced dropout, and targeted intentional recruitment or admissions. This will empower better decision making. This will empower the learning also. Enhance the learning experience. अभी आने वाले समय में आज भी ऑफिस में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि they should feel to come to office, not compel. तो खाना अच्छा रखना, जिम रखना, टेबल टेनिस रखना, ये सब चीजें घर में नहीं मिलती, इसलिए वो ऑफिस आ रहे हैं शाम के. So what type of learning experience we are giving to them? What exposure we are giving to them? What we are allowing them to learn about themselves is going to be the key area for them. अब ये यहाँ आने के बाद ही उसको पता लग सकता है, इसलिए वो यहाँ आना शुरू करेगा. So this is what is it in 2 minutes. Now it's thank you. If you have questions, this is my mobile number, this is my email ID. You can visit my LinkedIn page. There also you can request connections and ask questions. Are there any questions? We will have, we can generate a profile of the questions also in that way. है ना? Ask the questions, so we will generate question profile also. And at the same time, answer profile. Lot of questions or no questions? There are no limitations to AI, but there are no limitations to analyze all this data and That is why AI is there ना. ये डेटा इसका इंटरप्रिटेशन करके दे, चैट जीपीटी से पूछो ना, और उसके बाद वो आपको जज नहीं रहा तो आप एनालाइज करो, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें लाखों लोगों ने की हुई है. और ये मैं ये कह नहीं रहा हूं कि परसों करो, ये हमारा 5 साल का रोड मैप है ना. नेक्स्ट एक्रेडिटेशन साइकिल कब आने वाला है? 3 साल है. तो 3 साल का रोड मैप में से इसमें से क्या चीज कर सकते हैं वही देखना है. ओनली वन एट्रीब्यूट, वन एट ए टाइम. Can you use this problem statement in our method? Why not? क्योंकि देखिए भाई, mature personality sitting here, young and vibrant minds are outside. If they two meet, world की बेस्ट चीजें वही दो लोग मिलके बना सकते हैं. Now I am mentoring one of 5-6 IIT चेन्नई के students हैं. I am mentoring them for they are starting a music tech company. अभी मेरी आवाज से आपको पता लग गया होगा मुझे गाना नहीं आता. जिस ढंग से मैं हिल रहा था समझ में आ गया होगा कि एक्टिंग नहीं आती है ना. ये सब चीजें पता होने के बाद यू नो हाउ आई एम मेंटरिंग म्यूजिक टेक. क्योंकि जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, इसलिए हम लोग इकट्ठे हैं. वो तो उतनी दूर है, यहाँ तो आपके पास सभी है. और ऐसा कुछ नहीं है, चंद्रयान में एक भी आईआईटी का बंदा नहीं था, एक भी एनआईटी का बंदा नहीं था, और सबसे सस्ता और सबसे सक्सेसफुल कोई है. तो ये गलतफहमी में हमें रहने की जरूरत है कि हमारा इंटेक है कुछ चैलेंजिंग के बाद कुछ नहीं. यहाँ जजमेंट ऐसा तैयार करते हैं, अदरवाइज आपको अभी देखा टॉप 14 में स्टार्टअप के कोई ये था इवेंट था, उसमें आ गए है ना. इंक्यूबेशन सेंटर में लिखा था करेक्ट, टॉप 14 में आ गए. तो कैसे आया 14? वो टॉप 14 वाले थे क्या आपके एडमिशन देते समय? नहीं थे, वो आपने पैदा किए वातावरण से. तो हमारे प्रैक्टिकल, आपके पास ऑटोनॉमी है तो आपको प्रैक्टिकल डिजाइन करने का स्कोप है. ये बनाओगे तुम 5 लोग मिलके, तुम्हारा असाइनमेंट और प्रैक्टिकल पूरा हो गया. दैट्स इट. और इससे ज्यादा सीखने को ही नहीं मिल सकता. उसके चलते वो कितने लोगों से मिलने वाले हैं तो पता ही नहीं. सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन
So my humble request to you is that convert all these aspects into small projects. और जितना हम अपने assessment component में project based learning कितना बड़ा झूठ है, अब यहाँ पर आपको analyze हो रहा होगा कि how many projects we can do and how many we are doing. This is project based learning का best example है, innovative learning का best example है, startup driven learning का best example. सब एक ही में synthesize हो. Yes. Sir, Question? I just want to ask you one Yeah. thing. Last time there was hackathon in our college, and the one which you have explained, student monitoring system, has been made by the student in 7 hours. That was really good. They have made 3 different dashboards: student dashboard, parent dashboard, and parent dashboard, student and teacher dashboard. 3 dashboard, 3 different, and they have made the monitoring system also, which you said. But these things are like in the hackathon. Is it possible? How is it possible to implement with our students doing all those things, teaching, learning, and all, including all those sessions? The other day, when I don't know whether you were there or not, learning की spelling क्या है? उसमें earning, उसकी दूसरी spelling भी बन सकती थी. अगर earning नहीं हो रहा है तो learning नहीं है, कसम खा के मानो. तो हमारी लर्निंग की डेफिनेशन सिलेबस कंप्लीशन या फलाना या दिखाना हो सकती है, लेकिन आप नहीं कर रहे कि वो कर सकते सिर्फ एक प्रोफाइल, उसके कुछ एट्रीब्यूट. अदरवाइज डेटा स्ट्रक्चर क्या सीखा उसने, बिग डेटा क्या सीखा, कुछ सीखा ही नहीं ना. डेफिनेशन यहाँ से निकल के फिर वो एक कोर्स करते हैं, फिर एक कोर्स करते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं, वही वाले पुराने वाले प्रोजेक्ट उनको देते जाते हैं, वो इंटर्नशिप देने वाले लोग. वो सब हमारे यहाँ हो सकता है. It is possible. और उस प्रोसेस में हमारी कितनी लर्निंग होने वाली है. मतलब मेरी लर्निंग जब वो मैंने 2 घंटे का लेक्चर के लिए गया था, 18 घंटे चला. आप सोचो कि मेरी क्या हालत हुई होगी, मेरी कितनी लर्निंग हुई होगी. उनकी पता नहीं, लेकिन मेरी पूरी मतलब अपसाइड डाउन. सो स्टूडेंट्स हैं, लोकेशन है, इस लोकेशन को बेइंतहा सवाल है. सिर्फ उसको डायरेक्शन हम देंगे तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन अचीव होगी. एनी अदर क्वेश्चन? So I think that's it from our side, sir. Thank you so much, sir. Dr. Atul sir told about learning analytics, level of analytics, that is nano level, micro level, meets one macro level, objectives of analytics, and the difference between conventional educational analytics and visual analytics, benefits of visual analytics, academic analysis, and profile data analysis. Sir, your session was very informative, and I'm sure that our computer science and other departments will take up this opportunity and prepare such projects in the project-based learning. Now, as a token of our appreciation, we would like to present a moment to our esteemed guest. I request Honorable Principal, Dr. P.L. Nagpur sir, to kindly felicitate our Chief Guest, Honorable Dr. Atul Walekar. Oh. Yes, sir. Please give a huge round of applause to Dr. Atul Walekar sir for the informative session. Sir, 1 minute. अच्छा मैंने कोई दिक्कत नहीं. Thank you so much, sir. With this, we have reached the end of our today's first session. The second session will start with a break of 5 minutes. So, thank you very much. 5 minutes में वापस गैदर हो जाना है सब में. We'll start the second